very good morning to my lovely children. How are you today? I am Miss Minal Gaur, going to teach you chapter from literature, A Real Champion. This is the story of a boy, little boy, whose passion is swimming, and he wanted to take a part in swimming competition, and he wanted to represent district. So his passion by this competition, if he won this competition, he will get scholarship and his life will be improved. He never went to school, but by this scholarship, he he will go to a school which is run by a government, and in future he will take job also. So that's why he eagerly want to take part in this competition. But when he was running for this competition to reach the stadium, in that way, a little boy was drowning. So he wanted to help him, and he wanted to go stadium on time, but he decided to help the little boy. So student, we will read the remaining part of this chapter. Now start. Open page number 3 of your literature book, and we are going to read the chapter again. The boy ran to his mother. He hugged him. Lawrence, however, for long, Lawrence was exhausted. Lawrence was exhausted. When he saved the boy, little boy, he quickly, and her mother quickly hugged him. Hugged, right? Crying. Lawrence, however, was exhausted, very tired. He sat down to regain his breath. He sat down to regain, right? But he did not rest for long. But he can't rest because he wanted to reach in the stadium quickly. In a few minutes, he jumped up and started running towards the stadium. Quickly he stand up and start running toward the stadium की तरफ भागने के लिए जल्दी से खड़ा हो जाता. On reaching there, he received very disappointing news. This is disappointing, very sad news. What news? The 100-meter swimming competition had just finished. 100 मीटर की जो रेस थी वो अभी खत्म हो चुकी थी. Just. And some of the other events had begun. और जो दूसरे इवेंट्स थे वो चालू हो गए थे. Lawrence went to an official who was walking around with a notepad in his hand. Lawrence went to an official. वो ऑफिसर्स के पास जाता है जो who was walking around with a notepad. notepad के साथ जो टहल रहे थे. In his hand, अपने हाथों में लेके. I wish to participate in the 100-meter swim, sir, said Lawrence anxiously. बहुत ही उत्सुकता के साथ, बहुत ही उत्सुकता और मतलब कहते ना पूरी तरह वो चाहता है कि सर मुझे ये पार्ट लेना ही है 100 मीटर रेस में. Then you are 1 year too early. तो फिर आप तो काफ़ी जल्दी आ गए हैं, 1 साल पहले ही आ गए. Replied the official, rudely replied कहता है फिर तो आप 1 साल पहले ही आ गए. This year race just get over. इस साल की जो रेस है वो अभी खत्म हुई है. Could you please give me a chance, sir? said Lawrence. Lawrence कहता है कि क्या आप मुझे एक चांस देंगे? I was delayed due to unavoidable circumstances. Unavoidable circumstances, you can say that situation which cannot change, which you cannot change, जो आप नहीं बदल सकते हैं. Unavoidable circumstances. The official did not care. लेकिन ऑफिशियल उसकी कुछ नहीं सुनता है. If you don't have the simple discipline of coming on time for a competition, how can we expect you be a representative of the district?
अगर आप एक छोटा सा डिसिप्लिन है टाइम पे आने का, कंपटीशन में टाइम पे आने का फॉलो नहीं कर पाते, तो हम लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट को, आप अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे कंपटीशन में। वी नीड स्पोर्ट्समैन हु आर डेडिकेटेड एंड सिंसियर। हमें ज़रूरत है स्पोर्ट्समैन की जो बहुत ही लगन से और सिंसियरिटी से काम करे, रेगुलरिटी से काम करे। डोंट वेस्ट माई टाइम, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। लॉरेंस वॉकड बैक होम। लॉरेंस वॉकड, जाने लगता है घर वापस, डिजेक्टेड, बहुत उदासी से और बहुत ही निराशा से, उदासी से वो घर की तरफ जाने लगता है। नाउ ही वुड हैव टू वेट फॉर अनदर ईयर टू ट्राई हिज लक। अब उसको 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, पूरा 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा पार्ट लेने के लिए। द नेक्स्ट डे लॉरेंस वॉज सरप्राइज्ड टू सी अ वेल ड्रेस्ड मैन एट हिज डोर। लॉरेंस गेट खोलता है और वो सरप्राइज हो जाता है टू सी अ वेल ड्रेस्ड मैन एट हिज डोर। एक बड़े अच्छे कपड़ों में एक आदमी उसके सामने खड़ा होता है। आई एम फ्रॉम द स्पोर्ट्स सिलेक्शन कमिटी सेड द स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर कहता है कि मैं इस स्पोर्ट्स सिलेक्शन कमिटी की तरफ से आया हूँ। वी हैव डिसाइडेड टू गिव यू another chance to try and qualify for the district swimming competition। हमने डिसाइड करा है कि हम आपको एक और चांस देंगे क्वालिफाई करने के लिए, आपका डिस्ट्रिक्ट स्विमिंग कंपटीशन टीम में आने के लिए आपको एक और चांस देंगे हम लोग। लॉरेंस कुड नॉट बिलीव हिज लक, और लॉरेंस को अपने लक पे विश्वास नहीं होता है। ही इमीडिएटली वेंट विद द स्ट्रेंजर टू द स्टेडियम। वो जल्दी से उस स्ट्रेंजर के साथ, अजनबी के साथ जाता है स्टेडियम। ही स्वैम द एंटायर स्ट्रेच अलोंग वाइल द स्ट्रेंजर। वो तैरता है, बहुत ही अच्छे से स्ट्रोक करता है, स्ट्रेचेस करता है अलोन, अकेला। while the stranger and 2 other sportsman committee members timed his stage। और जहाँ पे और दूसरे जो कमिटी मेंबर्स हैं और वो वाला स्ट्रेंजर होता है, और वो लोग टाइम नोट कर रहे होते हैं कि कितनी फास्ट वो स्विम कर सकता है। You swam much faster than all the other competitors, they said, looking pleased। वो खुशी से स्माइल के साथ उससे कह रहे होते हैं कि तुम बहुत तेज हो और स्टूडेंट और कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग। वी हर्ड अबाउट योर ब्रेव डीड यस्टरडे। हमने तुम्हारी बहादुरी के काम का नाम सुने, कैसे तुमने कल वीरता दिखाई है। लॉरेंस सेड, अ कमिटी मेंबर पैटिंग हिज शोल्डर। वी हर्ड अबाउट योर ब्रेव डीड यस्टरडे लॉरेंस, said a committee member and patting his shoulder। पैटिंग शाबाशी देना, पैटिंग। The woman whose son you saved was having lunch at the same hotel as us। वो लेडी जिसके बच्चे को तुमने बचाया था, वो हमारे ही होटल में लंच कर रही थी। She told everyone how you helped them। उसने सबको बताया कि कैसे तुमने उसकी मदद करी, उन दोनों की मदद करी। We realized from her description that it was you, so that's why you were late। हमने डिसाइड करा, तो उसने जो चीज़ें बताई उससे हम लोग को यही लगा कि इसीलिए तुम लेट हो गए थे। Later that day, Lawrence was told that the district government had decided to give him a scholarship। उसके बाद लॉरेंस को बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उसे स्कॉलरशिप देगी। फाइनली ही कुड गो टू द स्कूल, और फाइनली ही कुड गो टू द स्कूल। ही कुड गो टू द स्कूल मीन्स फाइनली वो अब स्कूल जा सकेगा एंड बिकम अ ट्रेन्ड स्विमर, और एक ट्रेन्ड स्विमर बनेगा। लॉरेंस फेल्ट एक्साइटेड एंड हैप्पी अबाउट हिज फ्यूचर, और लॉरेंस बहुत ही एक्साइटेड होता है अपने फ्यूचर को लेके।
ही वॉज ऑल्सो ऑनर्ड विद एन अवार्ड, और उसको एक सम्मान पुरस्कार दिया जाता है सम्मान के लिए। द डिस्ट्रिक्ट कमिटी, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हु गेव हिम द प्राइज आस्क्ड हिम, और डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर होते हैं वो उसको प्राइज देने के साथ उससे पूछते हैं, लॉरेंस when you went to save the young boy, you must have known that you would be late for the race. मीन्स कि जब तुम उस बच्चे को बचाने जा रहे थे तो तुम्हें ज़रूर ये पता होगा कि तुम रेस के लिए लेट हो रहे हो। सो व्हाट मेड यू टेक द राइट डिसीजन, तो कैसे तुमने एक राइट डिसीजन, सही निर्णय लिया। इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट सर, सैड लॉरेंस। लॉरेंस कहता है ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ये कोई कठिन बात नहीं है। इट्स सो ईजी। आई रियलाइज दैट इफ़ आई कुड नॉट स्विम टू सेव द लाइफ, अगर मैं किसी की जान नहीं बचा सकता ऑफ ए यंग बॉय, उसी बच्चे की, माई रेपुटेशन एज द फास्टेस्ट स्विमर इन द डिस्ट्रिक्ट वुड बी मीनिंगलेस। जो मेरी रेपुटेशन है, अगर मैं फास्टेस्ट डिस्ट्रिक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा एक फास्टेस्ट स्विमर की, जब मैं एक छोटे बच्चे को नहीं बचा सकता, राइट। सो आई थिंक you get the story and I hope you understand it very well. So student, thank you so much.